Look at these sections quickly. Come on, everybody, pay attention. Nobody talks amongst each other. If you want to, you can be outside the class. Last 1 hour, please, let's focus. Section 7.1 talks about what is supply. Supply includes sale, exchange, barter, and all forms of supply. 7.2 talks about what is not a supply. Supply kya excluded hai supply mein se. Section 8, of course, in that you should know the schedules. Do you know what does schedule 1 talk about? Supply activities which are treated as supply even without consideration. Activities which are treated as supply even without consideration. Supply 2 बोलता है some activities will either be supply of G or supply of S. Now, one student here from the class, she has given the जो मेरे पास ब्रेन मैपिंग बुक थी एक स्टूडेंट की, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है, तो अगर आपको किसी को लेनी होगी तो यू कैन टेल इट्स ऑलरेडी गॉन डाउन बिकॉज आई टेक माई कॉपी एंड गो. सो वो कंप्लीट है, मेजर पार्ट ऑफ इट कंप्लीट. इफ़ यू वांट, शी इज गॉट द नंबर, उसको सिर्फ फोन करके नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाने को बोल देगी. तो बाय द टाइम माई क्लास इज ओवर द कॉपी विल बी डन. सो जस्ट रेज योर हैंड ना. शी हैज़ गॉट द नंबर. तो किसको चाहिए? सो इफ़ यू वांट, कैसे होगा फिर क्लास के बाद मैं कॉपी, मेरी ओरिजिनल कॉपी तो लेके चली जाऊंगी, किसी को चाहिए तो वहां पे उसको बोल देना, ठीक है. नाउ लेट्स फोकस. मेरा नेक्स्ट लाइव सेशन कब होगा? जैसे मुझे पता चलेगा सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगी. ध्रुवराज, अगला लाइव सेशन कब होगा? मेरे क्लास के बच्चों को पता है, यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी दिस क्वेश्चन. मोमेंट आई कम टू नो यू आर द फर्स्ट वन, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ. यस, डोंट डू दैट. यू ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ. नो, हाँ. एग्जाम तक. ओ माई गॉड. अच्छा सुनना. हाँ, पता है. चल अभी 8 is composite supply, 8B is mixed supply. Section 9.1, Section 9.1 is the charging section. Section 9.1, taxable person would be liable to pay GST under FCM. 9.3, RCM, notified goods and notified services. There are 16 notified services. Excuse me, what? There is 9.4, RCM applicable to builder in construction business. Very rare. आपके लिए इंटर में बिल्डर का सिचुएशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी हैव कवर्ड इट इन वन ऑफ द चैप्टर्स. आई हैव डन इट विथ यू ऑलरेडी. 9.5, eco is liable to pay. You have learned these sections in the class. हमने कितनी बार किया इसको. 9.5, who is liable to pay GST? Eco is liable to pay tax under 9.5 in 3 notified services. 10.1, 10.2 is composition scheme for goods. 10.2 is composition scheme for services. 11, government has powers to issue notification, और इसलिए आता है आपका exemption वाला chapter. Section 12, it talks about time of supply of goods. Section 13 talks about time of supply of services. Section 14 is not in inter. Section 15 talks about value of supply. उसमें भी 15.1 talks about transaction. 15.1 talks about transaction value. 15.2 talks about inclusions, that additional things like packing charges, commissions, so जो भी additional subsidy वगैरह. And 15.3 talks about discounts. So 15.3 talks about discount. We've made a very lovely chart, 1-page chart about 15.1, 15.2, 15.3. So entire value of supply gets over in a single chart on a single paper. Now I will teach you TOS. Pay attention. Time of supply. Again time of supply VOS. इस पे क्वेश्चन आते ही है. VOS अगर हो पाया तो मैं अभी करूँगी, नहीं तो VOS से रिलेटेड आई हैव अ वेरी नाइस रिविजन लेक्चर ऑफ VOS, तो मैं कल शाम को वो अपलोड कर दूंगी. सो खास VOS और चैप्टर 1. चैप्टर 1 मतलब कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए, कौन से नहीं हुए. 10 मिनट का वो लिया है, और आई थिंक 40 मिनट्स का सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी है. वेरी क्विक रिविजन आई हैव डन. सप्लाई का चैप्टर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है. सो मे बी आई विल अपलोड, एक कल करती हूँ, एक परसों अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे. ठीक है, चलेगा फिर. हाँ, अब सुनते TOS बेटा. Time of supply is different for goods and different for services, but value of supply is same for goods and same for
सर्विसेज। मेरे साथ अगर आप जितना नोटिंग करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो कैसे आपका ध्यान रहता है, फोकस हटता नहीं है, लास्ट में आप थके हुए रहते हो, राइट। सो ध्यान से सुनिएगा। VOS इज द सेम, बेटा किसकी बात हो रही है, VOS। VOS जो होता है इट इज सेम, VOS इज द सेम फॉर G और S, बरोबर। सो VOS इज सेम फॉर G एंड S, सेम रूल्स। बट TOS इट इज डिफरेंट फॉर गुड्स एंड डिफरेंट फॉर सर्विसेज, ठीक है क्या। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे। मैम वाई इज टाइम ऑफ सप्लाई नीडेड? टाइम ऑफ सप्लाई इज नीडेड बिकॉज जो आपका टाइम फ्रेम होता है इट इज नॉट द सेम। क्या होता है, जो सेल ऑफ गुड्स होता है इसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, ये अलग अलग इवेंट्स होते हैं। एक बार आप सेल करोगे, फिर पेमेंट आएगा, फिर आप PO भेजते हो कभी कभी, फिर गुड्स इंस्टॉलमेंट में आते हैं। तो ये वेरियस स्टेजेस में होता है। तो एग्जैक्टली आई एज अ सप्लायर आज द गवर्नमेंट, यार किस पॉइंट पे मैं टैक्स दूँ तुमको। सी पहले मैं गुड्स देखने जाऊंगी, फिर मैं पसंद करूंगी, आई से ओके दीज आर द गुड्स, देन आई गिव यू अ परचेज ऑर्डर, देन यू विल सेंड मी द गुड्स, देन यू विल रेज द इनवॉइस, पेमेंट होगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। ध्यान से सुनना, हम आखिरी पार्ट पे ही है, ये पूरा प्रोसेस होता है बेटा। जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो इसमें क्या हो जाता है, इन दिस एंटायर प्रोसेस at what point should I pay tax? This is what I am supposed to tell the, I am asking the government. So government says okay, we will define a time of supply. टाइम ऑफ सप्लाई में गवर्नमेंट बोलते हैं हम दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दो चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसको ट्रैक करना आसान होता है। एक होता है आई डेट, एक होता है आई माने इनवॉइस डेट, और दूसरा होता है पी डेट। See, module has a different way of teaching. I like to simplify things and teach, then it becomes very easy. I'll tell you very simple way. Very easy way. When your TOS is done and sorted, you will definitely get a sure shot question in the exam on TOS. इस concept पे question आना ही है। ITC पे compulsory एक 8 marks का question होता है, input tax credit. Value of supply पे एक question आता है, and RCM पे question is fixed for sure. So you know, out of 40 marks, you know 8 marks is sure shot input tax credit. Then you know 5 marks is value of supply. So 8 plus 4 is? अच्छा 8 plus 5 कर दो, 8 plus 5 is 13. Now 40 में से आप 13 निकाल दो, ये आ गए, बच्चा आपके 12 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस है। So it is very much manageable. Do you understand what I am trying to say? Okay. So VOS supply पे आपको केस स्टडी आता है कि इम्पोर्टेशन है तो है कि नहीं, क्या होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। तो सप्लाई का भी मेरे पास अच्छा लेक्चर है, सप्लाई का है, VOS का है, चैप्टर 1 10 मिनट में मैंने करवाया है, तो दैट लेक्चर आई विल अपलोड। सो दीज आर ऑल ए कैटेगरी, एग्जाम्शन में ले लूँगी आपके साथ। सो दिस इज ऑल ए कैटेगरी जो श्योर शॉट है आपके मार्क्स, एंड बचे हुए चैप्टर्स बिल्कुल GST में से कुछ स्किप नहीं करना है, पूरा करके जाना है। वी हैव टू टारगेट टू गेट दैट कंप्लीट मार्क्स ओवर देयर। ध्यान में आता है क्या आपको? हाँ ठीक है मैम। सो VOS इज सेम फॉर GNS, डिफरेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो गवर्नमेंट का लॉजिक देखो कि यार TOS डिसाइड करने के लिए वो बोलती है ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है आई डेट क्योंकि उसको ट्रैक करना देखना बहुत आसान होता है, और दूसरा होता है पी डेट बिकॉज वो भी बुक्स में अकाउंट किया जाता है। यार गुड्स डिलीवर कब हुए, तुमको कब मिला, ये रेयर केसेस में हम इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। जनरली आई वुड लाइक टू डिपेंड ऑन पी डेट एंड आई डेट। आई मीन्स इनवॉइस एंड पी मीन्स पेमेंट। नाउ मैम, टू नो द आई डेट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सेक्शन 31 जो बोलता है यार कि इनवॉइस एज पर द एक्ट। सी आपने अगर लोगों को बोल दिया ना आई डेट पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स लगेगा? आई डेट, तो लोग मस्त पे कि आई को पोस्टपोन करते बैठेंगे। तुमने लोगों को क्या बोला, तुम जब इनवॉइस रेज करोगे तब तुम्हारी लायबिलिटी अराइज होगी, तो लोग क्या कर सकते हैं फिर आय अपने मन से कभी भी निकालेंगे। तो ऐसा नहीं होता ना, तुमको CGST एक्ट ने एक सेक्शन दिया है कि तुमको आई डेट या इनवॉइस कब रेज करना है। क्या बोला है? इनवॉइस कब रेज करना है। तो जब गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है,
व्हेन दिस इज सेक्शन 36. टू अंडरस्टैंड टीओएस आई नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्ट के हिसाब से मुझे आय कब रेज करना है, ठीक है. तो सेक्शन 31 जो होता है वो क्या बोलता है, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जनरली मैं क्या बोलूंगी मेरे अकाउंटेंट को, यार वो गुड्स गोडाउन से निकाल रहा है वो डिस्पैच कर देना, हाँ, और बिल निकालना, बिल पहले रेज करना, डोंट फॉरगेट टू रेज द इनवॉइस. सो व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व यू विल इशू द बिल आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल. यार तो गुड्स बाहर निकल रहा है ना, नो, यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर नहीं है, इट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल. मतलब लेटेस्ट बाय द टाइम ऑफ रिमूवल तो आपको गुड्स का इनवॉइस निकालना है. मैम व्हेन सप्लाई डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, you come to my shop and you, simple thing, I just supplied to you, or I'm selling the classroom and I'm giving you these benches also. So benches का movement होने ही नहीं वाला है. The day I make these goods available to you, the day I give you the keys to the classroom, the goods are made available to you, that day I must raise the invoice. चलो ये चैप्टर क्लास में लर्न करना, फिनिश करना, फोकस करो. सो यहाँ पे ध्यान देना, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जब गुड्स निकाले दैट इज द टीओएस. अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, द डे द गुड्स आर मेड अवेलेबल. समटाइम्स दिस कंटिन्यूस सप्लाई लाइक सप्लाई ऑफ गैस थ्रू पाइप, सप्लाई ऑफ गैस थ्रू पाइप, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, कभी भी बंद ही नहीं होती है. जैसे इवन आपकी सर्विसेज में बात करें तो टेलीकॉम सर्विसेज, योर मोबाइल फोन, कंटिन्यूसली 24/7 यू आर गेटिंग द सर्विसेज, ये कभी भी बंद नहीं होते. वैसे गैस इज कंटिन्यूसली सप्लाइड. कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में गैस इज वेरी मच एसेंशियल, सो आई नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ दैट, सो आई एम सप्लाइंग दैट थ्रू पाइपलाइन. गवर्नमेंट क्या बोलती है, सप्लायर तुम कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हो लेकिन पेमेंट तो कहीं ना कहीं पीरियोडिकली लेते रहोगे ना. हाँ, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार तुम इनवॉइस कब रेज करना, व्हेन यू गिव अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और यू रिसीव पीरियोडिकल पेमेंट. साल भर में तुमको गैस सप्लाई कर रही हूँ तो क्या मैं बीच में रुकूंगी नहीं क्या, कभी आई विल चेक ना, स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट देंगे या क्वार्टरली स्टेटमेंट देंगे, मंथली पेमेंट लेंगे. तो गवर्नमेंट बोलती है जब तुम्हें पीरियोडिकली पेमेंट मिलेगा या पीरियोडिकली तुमको स्टेटमेंट रेज करोगे तब तुमने आय रेज करना चाहिए. ओके मैम, इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, कैसे भेजे तुमने गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. Now when I send goods on approval basis, what happens when I am sending goods on approval basis, मैंने तुमको भेज दिए, जिस दिन गुड्स का सेल हुआ उस दिन आप आय रेज करो, वरना 6 days फ्रॉम सेंडिंग इट, और 6 months फ्रॉम सेंडिंग इट. So you have to raise the invoice when either the day the supply happens. मैंने तुमको कुछ गुड्स भेजे अप्रूवल के लिए, तुमने 3 महीने बाद कॉल किया कि हाँ हाँ आई हैव लाइक द गुड्स, आई एम बाइंग इट, आई विल कीप द गुड्स. सो 3 महीने बाद अप्रूवल आ गया, मतलब सेल हो गया, अब इनवॉइस रेज कर दो. नहीं नहीं मैम 7-8 महीने हो गए अभी तक अप्रूवल नहीं आया. कोई भी अपने गुड्स 7-8 महीने ऐसे टाइम पास के लिए किसी के यहाँ रखता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. तो फिर भी हमने बोल दिया यार चलो 7-8 महीने हो गए, अप्रूवल आया नहीं, लेटेस्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच इनवॉइस शुड बी रेज. यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर का फंडा है, यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर का फंडा है. माने यू मस्ट रेज द इनवॉइस व्हेन द सप्लाई इज डन, सेल इज अप्रूव्ड, और 6 months फ्रॉम द डिस्पैच डेट विच एवर इज अर्लियर. तो मैम आई डेट पता चल गई. अब मैं आपको सिंपल चीज में बताती हूँ. सी इट्स अ सिंपल थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ लिसन, get this funda clear. What I say I really like as far as goods are concerned. बेटा पहले तो आपने देखना है कि आपको टीओएस किसके लिए निकालने के लिए बोला है, जी के लिए बोला है या एस के लिए बोला है. जी के लिए अलग होता है, एस के लिए टीओएस अलग होता है. जी के लिए जब टीओएस निकालने के लिए बोलते हो तो आपने जनरली देखना चाहिए आर यू अंडर एफसीएम मेथड और आर यू अंडर आरसीएम. मैम कौन से गुड्स आरसीएम में कवर्ड है ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाता है नोटिफाइड गुड्स पे आरसीएम लगता है. मैम सर्विसेज पे आरसीएम लगता है, वो हमारे सिलेबस में है. तो जीटीए सर्विस आ गई तो तुमको पता है वो आरसीएम वाली है, लेकिन कौन से गुड्स आरसीएम में ये इंटर के सिलेबस में नहीं है. तो ये गुड्स आरसीएम में कवर्ड है ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा. क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है माने वो एफसीएम वाले. मैम क्यों जानना जरूरी है कि एफसीएम है या आरसीएम है? बेटा एफसीएम में सप्लायर टैक्स पे करता है, थिंकिंग सप्लायर के व्यू पॉइंट से होता है. आरसीएम में टैक्स रेसिपिएंट पे करता है, थिंकिंग रेसिपिएंट के व्यू पॉइंट से होता है. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि टैक्स पे कौन कर रहा है. अगर सप्लायर ऑफ गुड्स है और वो एफसीएम में टैक्स पे कर रहा है
गुड्स के लिए गवर्नमेंट का फंडा बहुत क्लियर है, वी वांट टीओएस इज ओनली द आई डेट, पी को इग्नोर करते हैं। टीओएस क्या होता है? ओनली आई डेट। पी को इग्नोर करने का कारण क्या है मैम? पी को माने पेमेंट को इग्नोर करने का कारण क्या है? कभी कभी पेमेंट एडवांस में आ गया तो उनको टैक्स देना पड़ता है, उनको बहुत दर्द होता है, फिर गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। नोटिफिकेशन नंबर 66, we had learnt it, 66 2017 dated 15 November 2017, yes we learned, because पूरे जीएसटी में आपको कहीं गिन चुन के एक ही नोटिफिकेशन लर्न करना है। नाउ याद करना, forget the notification, remember the provision at least, forget the number, now remember, sit straight, I am a supplier of G, paying tax under FCM, think from the viewpoint of supplier को बोला रोने धोने का नहीं, तेरे को पीरियड इग्नोर कर दिया है, एडवांस पे तुमको टैक्स पे करने की ज़रूरत है नहीं, मेरे को एडवांस आ गया आज, लेकिन मैंने इनवॉइस रेज किया 2 महीने बाद, आई डेट पे बिल पे आई डेट पे जीएसटी आएगा। लेकिन व्हाट इज द आई डेट? आई डेट इज आइदर द एक्चुअल डेट, जो डेट पे तुमने एक्चुअली निकाला, और द डेट व्हेन यू शुड हैव इशूड द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। सो जिस दिन आपको आई निकालना चाहिए था अंडर द एक्ट और एक्चुअल डेट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट को टैक्स जल्दी चाहिए ना, तो विच एवर इज अर्लियर इज बोलेंगे। हाँ तो सुनना, अगर मैम ये कॉम्पोजिशन वाला सप्लायर होगा तो उसके लिए आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर। एंड इफ यू आर अ कॉम्पोजिशन सप्लायर वाला गुड्स, देन इट इज आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें फंडा क्या है सुन के लेना। आई डेट 2 प्रकार की होती है, वन इज द एक्चुअल डेट ऑफ आई और आई इशूड अंडर सेक्शन 31, आई इशूड अंडर सेक्शन 31। पी में क्या होता है? यार तुम किसके व्यू पॉइंट से सोचते सब कुछ? सप्लायर, ये एफसीएम चल रहा है, सप्लायर को पेमेंट मिलता बाबा, सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, ही रिसीव्स द पेमेंट, सो द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन हिज बैंक, वो पेमेंट रिसीव करता है, सप्लायर को पैसा मिलता है ना। So what is the P date? P date is the date when it is credited in the bank. Money is credited in the bank or recorded in the books whichever is earlier, or recorded in the books whichever is earlier. I date or P date, whichever is earlier. What is I date? So some people can learn like this, actual date of I, or 31 wala I, or recorded wala P, or receive wala P, whichever is earlier. No, I or P. We know what is I and we know what is P. So it's I date or P date, whichever is earlier. If I am not into composition scheme, I am a normal supplier of goods, then it is simple I date. Then it is simple I date. You have to only learn now RCM में. RCM में thinking किसके व्यू पॉइंट से होता है? हाँ, अब ध्यान से सुनने का। आरसीएम में थिंकिंग किसके व्यू पॉइंट से होता है? रेसिपिएंट के। बेटा अभी जो रेसिपिएंट होता है ना, ये देखो इधर तो एकदम मस्त पे कि अपन ने ये एक चार्ट में योर एंटायर टीओएस इज डन। ओके, पे अटेंशन नाउ, लिसन। ओए किधर है तुम्हारे पास नोट्स है? ज़रा जल्दी जल्दी बताते क्या आज की तारीख में मेरे को पेज नंबर, थोड़ा सा मेरे को हेल्प करते क्या पेज नंबर वगैरह? हाँ मिल गया, ठीक है। सुनना, ओके लिसन ना रे बाबा। अब क्या है मैम, अगर गुड्स है, पहले सिंपल गुड्स है और एफसीएम है। एफसीएम में नॉर्मल गुड्स है, ओनली आई डेट। कॉम्पोजिशन स्कीम है तो आई और पी, विच एवर इज अर्लियर। आई के 2 डेट्स है, एक्चुअल डेट और 31 सेक्शन, विच एवर इज अर्लियर। पी के 2 डेट्स है, पैसे क्रेडिटेड और रिकॉर्डेड इन बुक्स, विच एवर इज अर्लियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? नाउ इफ आई एम अंडर आरसीएम, the goods are covered under RCM, then the recipient has to pay. अब तुम रेसिपिएंट को बोलते हैं आई डेट, वो बोलता है आई का डेट मेरे को कैसे पता? मैं थोड़ी इनवॉइस बना रहा।
गेट द लॉजिक यार। रेसिपिएंट बोलेगा आय का डेट मुझे कैसे पता, मैं कहाँ आय बना रहा हूँ, आय बनाने वाला तो सप्लायर है। तो भी अरे हाँ यार इसको तो आय डेट पता ही नहीं है, तो चलो एक थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, उसको बोलते हैं 31st डे फ्रॉम आई डेट। सो वी से 31st फ्रॉम आई डेट, अपन क्या बोलते हैं उसको, 31st डे फ्रॉम आई डेट। सो 31st डे फ्रॉम आई डेट, और पी डेट तो है ही, पी डेट भी है, ये आरसीएम इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया। पी डेट है, हाँ मैम, आई डेट नहीं है, 31st डे फ्रॉम आई है, पी डेट है, हाँ, और द डेट व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड। ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो और उधर नहीं, सबका ध्यान उधर है। तू खुद ध्यान दे रहा और इसको बोल रहे उधर ध्यान मत दो रहे। अच्छा तुम्हारा टीओएस हो गया है क्या, पढ़ाओ क्या मैं, चलो अब सुनना। टीओएस, come on guys, TOS we are learning for G and this is recipient. Recipient means here you have to think from the viewpoint of the recipient. Recipient बोलता है यार तुम I और P बोलते तो कैसा चलता, मेरे को तो I का डेट पता ही नहीं है, तो हम बोलते कोई बात नहीं है, 31st डे फ्रॉम I और P और रिसीट ऑफ गुड्स whichever is earlier। उसमें से 31st डे जो इनवॉइस का डेट है उसका 31st डे, या कभी कभी मॉड्यूल में जैसे बोला जाता है 1 डे फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम आय म्हणजेच 31st रे बाबा, जाऊ देत। अब सुनना, इधर का पी डेट क्या होता है, रेसिपिएंट के हिसाब से पी मतलब रेसिपिएंट पेमेंट करता है, तो द डे ही हैज रिकॉर्डेड द पेमेंट इन हिज बुक्स, और द डे इट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक, और इट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक whichever is earlier. Okay, so it's either, come on quickly, TOS for RCM, P date 31st day from I date or receipt of goods whichever is earlier. P date 31st day from I or receipt of goods whichever is earlier. मैम 31st day from I क्योंकि वो कौन है, रेसिपिएंट है, उसको इनवॉइस मिलने के बाद उसको आई का डेट पता चलता, तो अपन इसलिए 31st डे का मार्जिन रखते, बरोबर है क्या, यस, ओके। नाउ मैम दिस इज आरसीएम, दिस इज डन। नाउ व्हाट इज वेरी सिंपल इज वाउचर वाला केस। वाउचर वाले केसेस में क्या होता है, अभी इसके आगे जो केसेस है वाउचर, रेसिडुअल, ये सर्विसेज हो या गुड्स हो, दे आर द सेम, सो इट्स इजी। वंस आई टीच यू फॉर गुड्स इट इज गोइंग टू बिकम द सेम फॉर सर्विसेज। नाउ पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड, पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड, फिनिश लर्निंग हियर विथ मी इन द क्लास। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाउचर्स, वाउचर्स दो प्रकार के, मैंने अगर किसी को वाउचर क्रॉसवर्ड का दिया या अमेजोन का वाउचर दे दिया, वो अमेजोन के उस वाउचर से अमेजोन को पैसे मिल गए आज, उसका सीए बोलता है चल चल पैसे मिल गए ना, टैक्स पे कर। अमेजोन बोलते मेरे को क्या पता ये पर्सन क्या खरीदेगा, मैं क्या रेट से टैक्स पे करूं। द सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल। वो अमेजोन से गुड्स ले सकता है, अमेजोन से ग्रोसरी ले सकता है, अमेजोन से कपड़े ले सकता है, वो कुछ भी ले सकता है अमेजोन से। सो मुझे पता नहीं है मैं क्या रेट से टैक्स पे करूं। अग्रीड? Supply is not identifiable. When supply is not identifiable, the TOS will arise on redemption of the voucher. तुमको 2000 का वाउचर दे दिया, जब तुम शॉपिंग करने जाते ना तब तुमने वाउचर रिडीम किया, तब अमेजोन को पता चलता है आज 2000 में से इसने क्या खरीदा, तब वो रेट डिसाइड कर सकता है। बट इफ आई गिव यू डोमिनोज पिज्जा का वाउचर, तुम डोमिनोज पिज्जा के वाउचर से आज भी पिज्जा ही ले सकते हैं और 2 महीने बाद भी पिज्जा ही ले सकते, तो उसका सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल। सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल तो गवर्नमेंट बोलती तुम रुकते काय को, डोंट वेट। So the issue of voucher will become the TOS, and when supply is not identifiable, the TOS is the date of redemption of the voucher, and when supply is identifiable, the TOS is date of issue of voucher. Is that clear? Come on, start again. TOS for G. TOS for G. FCM normal. TOS is equal to I date. एडवांस पे टैक्स देने का है क्या? नहीं, पहले देने को लगाते थे। जुलाई 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया,
15 नवंबर तक इनको दर्द होने लगा, एडवांस पे टैक्स 66 नोटिफिकेशन नंबर 15 नवंबर 2017, तुरंत कुछ ही महीनों में इनको दर्द होने लगा, एडवांस पे इनका जीएसटी कैंसिल कर दिया और उनके लिए टीओएस सिर्फ आई डेट रखा। कॉम्पोजिशन सप्लायर को बोला आई और पी विच एवर इज, आई के 2 डेट्स एक्चुअल और 31 विच एवर इज, पी के सोचने का सप्लायर की रेसिपिएंट है, सप्लायर है तो पी का डेट है क्रेडिटेड इन द बैंक और रिकॉर्डेड इन द बुक्स विच एवर इज अर्लियर। मैम आरसीएम में रेसिपिएंट के व्यू पॉइंट से सोचने का, तो पी डेट और 31st डे फ्रॉम आई और रिसीट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, बरोबर? ओके मैम, इफ इट इज वाउचर्स के लिए सप्लाई आइडेंटिफाइबल, सप्लायर नॉट आइडेंटिफाइबल, सप्लायर्स आइडेंटिफाइबल इशू ऑफ वाउचर, एग्जाम्पल डोमिनोज, सप्लायर्स नॉट आइडेंटिफाइबल डेट ऑफ रिडम्पशन, इसका एग्जाम्पल है अमेजॉन। ओके नाउ मैम, देयर इज अ रेसिड्यूरी केस when what happens is you don't know the I date, you don't know the P date, this is normally an undisclosed income, investigation हुआ और कुछ भी आपके पास नहीं है, ना I date है ना कोई P date है, then we use residuary case। रेसिड्यूरी इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपके रिटर्न की ड्यू डेट ही आपकी टीओएस अराइज होगी। आपने ना जानबूझ के एक ट्रांजैक्शन बुक्स में से गायब कर दिया, सिर्फ कैश पैसे आ गए या आपके पास बाकी का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं मिला, आपके रिकॉर्ड से ना पेमेंट की डेट मिली ना कुछ भी नहीं मिला, किसी और का ऑडिट चल रहा था उसमें पता चला यार इन्होंने तो आपको पेमेंट दिया था, तो दैट टाइम यू कम टू नो दिस इज द रेसिड्यूरी केस वेयर it's going unaccounted for. That is why I is also not there and P is also not there. No evidence is also there. Because none of the evidence are there, then I will use a residuary entry. If I am already registered, then the due date of the return becomes the TOS directly. If I am not registered, the day when you actually go to make the payment is you actually go and pay the tax payment becomes your TOS. Is that okay? Ma'am, sometimes I get additional consideration. When you learn the chapter of value of supply, if you get additional consideration penalty या interest because आपको payment time पे नहीं मिला, it becomes taxable. It becomes taxable. When you get additional consideration, interest, penalty for not receiving the consideration on time, then it is taxable. And if it is taxable, तो यार उसका TOS क्या होगा? उसका TOS is the date of receipt. क्योंकि इस केसेस में क्या होता है ना, ये इंटरेस्ट और पेनल्टी सुनो तो ये इंटरेस्ट और पेनल्टी गारंटीड नहीं होता है कि मिलने वाला है, तो जिस दिन मिलेगा उस दिन का डेट लेंगे, जिस दिन मिलेगा उस दिन का डेट लेंगे। और जब वीओएस में प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे ना, जनरली ये जो इंटरेस्ट और पेनल्टी होता है ना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेते, जनरली ये इंटरेस्ट और पेनल्टी अपन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेते। इज दैट ओके? यस। So ma'am, this is about TOS for additional consideration. TOS for additional consideration is date of receipt of additional consideration. Is it done? Yes ma'am. चलो TOS गुड्स का एकदम टकाटक चकाचक हो गया क्या? ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे TOS for goods FCM कॉम्पोजिशन में है तो I और P whichever is earlier, I की डेट 2, P की डेट 2। अदर्स कॉम्पोजिशन में नहीं है तो TOS इज इक्वल टू आई डेट। ये मेहरबानी नोटिफिकेशन नंबर 66 डेटेड 15 नवंबर 2017 की वजह से हुई है। यस। आरसीएम है तो 31st डे फ्रॉम आई और P और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 1, 2, 3 में से विच एवर इज लोअर। P की 2 डेट्स पेमेंट रिकॉर्डेड और डेबिटेड फ्रॉम बैंक विच एवर इज अर्लियर। Whenever I or P date is not available, TOS is equal to, हाँ of course, now listen, मैम I और P date नहीं है, लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पता चला कि अरे यार गुड्स का when the goods get into your factory, they maintain in the register, तो there's a register, उसमें पता चला गुड्स रिसीव हो गए, इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं किया, पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, अपन अनडिस्क्लोज करने की कोशिश कर रहे, इनवॉइस नहीं ले रहे, कैश में उसको पेमेंट कर रहे, लेकिन कुछ और मिल गया ना। क्या मिल गया? रिसीट की डेट आ गई। सो इफ आई एंड P डेट आर नॉट अवेलेबल, आई कैन ऑल्सो ट्राई फॉर द डेट ऑफ रिसीट और गुड्स और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स। ये भी नहीं मिला
कुछ भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तब रेसिड्यूरी में जाने का, ठीक है। तब कहाँ जाने का? रेसिड्यूरी में जाने का। रेसिड्यूरी में डायरेक्ट जंप नहीं करने का, कुछ तो ट्राई करने का मिलता है क्या। वाउचर्स आपको बोला, सप्लाई आइडेंटिफाइबल, सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल। हियर आई मस्ट हैव गिवन सेंट्रल मॉल, और यू कैन राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ अमेजॉन। रेसिड्यूअल केस अभी जस्ट कवर किया। रेसिड्यूअल, ओ गॉड, रेसिड्यूअल केस में रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड एंड टीओएस इज डेट ऑफ फाइलिंग। अदर केसेस टीओएस इज इक्वल टू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। एडिशनल कंसिडरेशन इंटरेस्ट के लिए टीओएस इज इक्वल टू डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन, एडिशनल कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। नाउ आई विल कम टू टीओएस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। थोड़ा सा आपको ये समझना है कि बेटा सर्विस में ना ये गुड्स जैसा नहीं होता, ये दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे गुड्स में फिर भी दे आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल, वेरी डिफिकल्ट टू सी रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ना पे अटेंशन। सर्विसेज में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि मैं इनवॉइस पहले रेज करती हूँ। अब सर्विसेज में इनवॉइस कब रेज करना है? क्वाइट, अंडरस्टैंड दिस डेट 31/2। 31 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट आई गुड्स के लिए कब रेज करना है, 31/2 टॉक्स अबाउट सर्विसेज के लिए कब रेज करना है। अब ध्यान से सुन के लेना। हिताक्षी ने सही बोला, मैम अगर वो इंटरेस्ट वेव ऑफ हो गया तो उस पर टैक्स नहीं देना है। करेक्ट, वी डू दैट इन आर वीओएस के क्वेश्चंस में, एब्सोल्युटली। नाउ आई विल क्विकली टेल यू सर्विसेज के लिए इनवॉइस कब रेज करना है और सर्विसेज के लिए इनवॉइस कब रेज कर। एक ही सेकंड ना, जस्ट अ मिनट। All right. Oh. Okay, fine. Listen. Now, ma'am, TOS तुमको अच्छे से समझ में आया ना TOS गुड्स का? हाँ. अब सुनते TOS फॉर सर्विसेज। पहले अपन सर्विसेज में ये समझेंगे कि सर्विसेज का इनवॉइस कब रेज किया जाता है। सर्विसेज में आपको एक चीज बताती हूँ, सर्विसेज में ना जनरली सर्विस खत्म होने के बाद इनवॉइस रेज किया जाता है। जनरली कोई पहले रेज नहीं करता, जनरली। ओके, नाउ लिसन। सो हमने एक टाइम बोल दिया, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद रेज द इनवॉइस विद इन 30 डेज। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद रेज द इनवॉइस विद इन 30 डेज। सो एटलीस्ट रेज द आई विद इन 30 डेज, और कुछ नहीं तो आई एटलीस्ट 30 डेज के अंदर आप रेज कर दो। अगर आपने आई 30 डेज के अंदर रेज किया तो इट्स सिंपल आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर। आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर। इट्स आई और पी विच एवर इज अर्लियर। पानी देने वाला, ओके नहीं, अभी लिसन, इट इज, लेट अस अंडरस्टैंड आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आई विद इन 30 डेज रेस किया ही नहीं, तो ना हम उस आई डेट को इग्नोर कर देंगे। एकदम ध्यान से सुनना। इफ in the services I'm supposed to raise the invoice legally as per the act within 30 days. I'm supposed to raise the invoice within 30 days. If you raise invoice within 30 days, superb. I or P, whichever is earlier. But if you don't raise the invoice, if you don't raise the invoice within 30 days, then हम उस I date को ignore कर देंगे। फिर हम बोलेंगे यार सर्विस वाली डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर। तुम्हारी गलती है, तुमने आई को विद इन 30 डेज रेज नहीं किया। अभी विल जस्ट इग्नोर इट, विल नॉट फॉलो इट एट ऑल। देन विल डिसाइड सर्विस प्रोवाइड करने की आखिरी वाली डेट जब सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है, या पी डेट विच एवर इज अर्लियर। ध्यान से सुनना। जनरली नॉर्मल सर्विसेज मुझे इनवॉइस कब रेज करना है?
नॉर्मली आई हैव टू रेज द इनवॉइस विद इन 30 डेज. एग्जाम्पल, अगर ऑडिट की सर्विस आज हो गई, कंप्लीट होने के बाद 30 डेज के बाद मुझे इनवॉइस रेज करना है. फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस आई एम अलाउड टू रेज दिस बिल, रेज द इनवॉइस विद इन 45 डेज. आई कैन रेज द इनवॉइस विद इन in case I stopped the service in between. I was hiring the services of an architect and I didn't like his taste and my taste does not match. So I tell him, let's stop. Shh. I tell him, let's stop. I tell him, let's stop the services and let's not continue. So what happens in that case? I'll tell him, ठीक है, तुमने जितना तुमने फर्स्ट फ्लोर कर दिया तो ठीक है, अभी आगे का काम तुम मत करो, जितना काम किया उतना मुझे बिल दे दो, मैं उतना पेमेंट तुम्हें कर देता हूँ. सो व्हेन यू स्टॉप इज सेसेशन ऑफ सर्विस. व्हेन यू स्टॉप द सर्विस you must raise the eye when the service is stopped. You must raise the eye when the service is stopped. Ma'am, if it is a continuous supply of service, if it is a continuous supply of service, understand continuous supply of service की definition क्या है? Which is being provided continuously to you, like the telecom, आपका mobile phone telecom services. Yeah, continuous services of supply में इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आते हैं दो. एक होता है कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड, दूसरा होता है एनी सर्विस जिसका पीरियड 3 महीने से ज्यादा है. ध्यान से सुन के लेना. मेरे लिए अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देता है, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज और इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 महीने से ज्यादा लगा तो ये हो गया कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. ध्यान से सुन के लेना. मैम, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में 3 ऑप्शंस है कैसे इनवॉइस रेज करना है. पहले तो गवर्नमेंट बोलती है ड्यू डेट ढूंढो. क्या ढूंढो? ड्यू डेट. जैसे कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग क्लासेस है जो 1 साल के लिए चलते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन, देन वी गिव देम टर्म, या हम टर्म्स देते हैं. टर्म 1 की फी की ये ड्यू डेट है, टर्म 2 की ड्यू डेट ये है, ये ड्यू डेट्स दी. ये डेट्स पे आपने आई रेज करना चाहिए. माने कंटिन्यूस सर्विस है, साल भर सर्विस चालू ही छे, तो आई डेट, पी डेट, सर्विस खत्म होने के बाद अपन आई रेस करते हैं ना जनरली. बट इधर गवर्नमेंट बोलते नको, ऐसा नको. तुम रुकते क्या? पूरा बिल्डिंग, पूरा एजुकेशन देने के बाद तुम बाद में फीस लेते क्या? नहीं, तुम इंस्टॉलमेंट में लेते ना, पहले से लेते ना, हमको भी टैक्स दे दो ना, आई रेस कर दो. सुनो, हाँ, हियर if it's we are talking about continuous supply, बेटा we are talking about continuous supply. continuous supply में ड्यू डेट होता है कि आपको पेमेंट इस ड्यू डेट पे देना पड़ेगा. देन दैट ड्यू डेट should be treated as your I date. Ma'am, if there is some scholarship scheme in that coaching institute for some needy persons who have given an exam and they are genuine, तो उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम है, तो अपन ने उनको कंसेशन दिया है. फिर अपन उनको कंसेशन देते और बोलते बेटा तो ये साल भर की फी कभी भी पे कर जब तेरे को जमेगा. माने वी आर नॉट गिविंग देम अ ड्यू डेट. इफ देर इज नो ड्यू डेट देन एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज द आई डेट. देन एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज द आई डेट. पहले ड्यू डेट है क्या, वो इच आई डेट बनेगा. मैम, इधर आई डेट का प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि सर्विस खत्म ही नहीं होती है, कंटिन्यूसली चालू है. तो इसलिए पीरियोडिकल पेमेंट मिलता है, तो पीरियोडिकल पेमेंट की ड्यू डेट फिक्स्ड है, ट्रीट दैट एज द आई डेट. ड्यू डेट फिक्स नहीं है तो जब एक्चुअल पेमेंट मिला उसको आई डेट ट्रीट करो. ऐसा भी नहीं है. लेकिन मैम, मेरे को पेमेंट मिलना एक इवेंट पे डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है? इवेंट. ये मेरी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, मैंने बोला कि इतना पहला फाउंडेशन हो गया, एक स्लैब आ गया तो 30%, फर्स्ट फ्लोर तक हो गया तो इतना % पेमेंट. इवेंट पे डिपेंडेंट है. देन उस हर इवेंट के होने पे आई रेज होना चाहिए. उस इवेंट के होने पे क्या रेज होना चाहिए? आई. तुमने कस्टमर को बोला ना 30% कंप्लीट करो तो अब 40%, ये फर्स्ट स्लैब कर दो तो हमको 40% पेमेंट चाहिए. तो बेटा फर्स्ट स्लैब कंप्लीट होने पे लेटर जाना चाहिए कस्टमर को, अब एज पर आवर एग्रीमेंट फर्स्ट स्लैब इज ओवर, गिव अस 40% पेमेंट. दिस विल बिकम योर आई डेट. कंटिन्यूस सप्लाई. सी, सर्विस खत्म हो गई, 30 डेज के बाद आई रेस करो, प्रॉब्लम नहीं है.
तुम बैंक और इंश्योरेंस कंपनी है तो 45 डेज में रेज करो। ये तुम्हारी सर्विस कंटिन्यूस चालू है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है क्या, दैट्स योर आई डेट। ड्यू डेट नहीं है, एक्चुअल पेमेंट डेट है क्या, दैट्स योर आई डेट। अरे वो भी नहीं है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला काम, payment is linked to an event, then that event should be treated as the I date. Then that event should be treated as the I date. Okay. Ma'am, if there is continuous services में और क्या है I date के लिए? हाँ नहीं ये तो इनवॉइस का डेट। अब अपन स्टार्ट करेंगे किसका, TOS। अब ध्यान से, पहले फॉरवर्ड चार्ज में TOS अंडर FCM, कौन सा, FCM, कोचिंग सर्विसेज FCM, 16 सर्विसेज अंडर RCM। कोई एग्जाम में आके बोलेगा नहीं वो 16 में से कोई सर्विस आ गई वो RCM में आ गई तो RCM वाला TOS अप्लाई करना, झेपता है क्या? हाँ, अब सुनो, we are learning TOS for supply of services. First, the supply of services is under FCM. If the invoice is issued within 30 days, तो I को importance देंगे। hey, तुम within 30 days issue है क्या? एक्ट ने बोला 30 days में I raise करने का, तब I को importance देंगे। Then I date or P date, whichever is, and we know what is the I date, the actual date of I or the I that should be issued under 31. Yes, whichever is earlier. And P here payment is as per the supplier, FCM चल रहा है तो पेमेंट सप्लायर के बैंक में क्रेडिट हो गया या रिकॉर्ड हो गया, whichever is earlier. मैम, if I is not issued within time, I को काट डालो, I is not issued within time, I को काट डालो, then it is सर्विस वाली डेट और P वाली डेट, whichever is, and P वाली डेट is when payment is recorded or credited, whichever is earlier. Okay. अप टू 1000 रुपीज़ अगर आपको अगले इन्वॉइस से रिलेटेड भी पेमेंट आ जाता है, जैसे मेरा इन्वॉइस 41,458 है, लेकिन मैंने पेमेंट कितना किया करते वक्त अपन बोलते यार वो चेक लिखते हुए बार बार भूल जा रहे, 41 कितना, वो इन्वॉइस किधर तो भी रह गया, मैंने जाने दो ना, 41 समथिंग है, 42 का बिल दे देते। अब उनका अपना बार बार ट्रांजैक्शन चालू रहता है, अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगा। इनवॉइस की अमाउंट से ज्यादा पेमेंट हो रही है, क्या, इनवॉइस की अमाउंट से ज्यादा पेमेंट हो रही है, वो ज्यादा पेमेंट जो है इट इज अप टू 1000 रुपीज। वो ज्यादा पेमेंट तुमने कितना किया, 542, दिस एक्सेस पेमेंट इज अप टू लेस देन 1000, तो ये गवर्नमेंट बोलते जाने दो ना, अगले इनवॉइस में एडजस्ट कर लेना, चलेगा। इसका TOS कैन बी द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस, इसका TOS कैन बी डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस। मैम वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है 1000 के ऊपर है तो बेटा वो एडवांस बन गया, तो आई डेट और P डेट विचएवर इज अर्ली। ये 1000 तक है तो गवर्नमेंट बोलते जाने दो ना, एडवांस में नहीं लेंगे, आई डेट में ले लेंगे, लेकिन तुमको 50,000 एडवांस में आ गए तो हम छोड़ेंगे नहीं बाबा, आई और P विचएवर इज अर्लियर, बरोबर। RCM करना है, उसके बाद तो सब कुछ सेम है। RCM में 2 कैटेगरीज है। RCM में कितनी कैटेगरीज है, 2। RCM में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मैम आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज RCM में हमको नहीं सिखाया, इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि वो IGST में आता है, अपने सिलेबस में सिर्फ CGST है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ। मैंने सर्विसेज ली है, आई एम इन इंडिया, जो सर्विसेज दे रहा है वो इंडिया के बाहर है, गवर्नमेंट की तो वो बाहर वाले के साथ ये करेगी यार चलो टैक्स दे दो वगैरह वगैरह, वो बाहर है ना, आर्किटेक्ट इंडिया के बाहर है, आई एम इन इंडिया। सो इन इम्पोर्ट जनरली गवर्नमेंट प्रीफर्स टू टेक टैक्सेस फ्रॉम द रेसिपिएंट। मैम ये हम कहाँ पढ़ेंगे फाइनल में, जब तुम IGST एक्ट पढ़ोगे, अभी अपने सिलेबस में सिर्फ CGST है। So now let us understand, I am going to pay tax under RCM. I am going to pay tax under RCM for import of services. Import of services is happening between associated enterprise. They are kind of related. They are kind of associated with each other. Then you know in that case, I generally don't give importance to I. एसोसिएटेड और रिलेटेड पर्सन्स में क्या आय वगैरह क्या इशू होगा, नहीं तो मैं आय पे फोकस नहीं करना चाहती ऐसे केस में। आई वांट टू फोकस ऑन डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ रिसीवर विच एवर इज
अर्लियर। तो आपको सर्विसेज कब मिली, वो वाली डेट या पेमेंट वाली डेट, विच एवर इज अर्लियर। जनरली हम इस केस में आय पे फोकस नहीं करते, आरसीएम है और एसोसिएटेड पर्सन और वैसे भी रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है। सो वी विल से ये ना, आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट लाइक टू आस्क, बिकॉज दिस इज वेरी मैकेनिकल। आइडियली इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हम सीखते नहीं है, लेकिन उसका टीओएस सीखते हैं और ये आईसीआर को पसंद भी आता है पूछने के लिए। तो चलो ठीक है, विल कीप इट इन माइंड। इट्स डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री of services in the books of receiver, whichever is earlier. मैम अगर 16 सर्विसेज जो हमने सीखी, जीटीए, लीगल, गवर्नमेंट का रेंटिंग, एजेंसी सर्विसेज, यस, तो ये वाली जो सर्विसेज आती है, देन आई हैव टू पे, then I have to pay taxes under RCM. Now I have to think from the viewpoint of the receiver. I have to think from the viewpoint of the receiver. Now if I think from the viewpoint of the receiver, P date तो है ही, लेकिन इनवॉइस से मिलता है 61st डे, क्योंकि सर्विसेज में ऑलरेडी इनवॉइस रेज करने के लिए 30 डेज का टाइम होता है और उसके आगे तुम्हारे पास पहुंचने का टाइम, इसलिए गुड्स में जो 31st है वो यहाँ 61st हो जाता है, गुड्स का जो 31st है यहाँ 61st हो जाता है। बेटा हम आरसीएम वाली सर्विसेज, फॉरवर्ड चार्ज में सिंपल, आई इशूड विद इन 30 डेज, आई और पी विच एवर इज अर्लियर, आई नॉट इशूड विद इन 30 डेज, सर्विस डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर, सिंपल। मैम आरसीएम, आरसीएम में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का आई डेट को इग्नोर मारने का, इनवॉइस देखने का ही नहीं, डेट ऑफ पेमेंट और व्हेन द एंट्री ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। मैम उसके बाद आरसीएम अदर्स, आरसीएम अदर्स पी और 61st डे फ्रॉम आई। मैम उधर रिसीट ऑफ गुड्स था ऊपर, मैम इधर गुड्स नहीं है ना सर्वे, रिसीट ऑफ सर्विसेज इतना ये नहीं अपन इंपॉर्टेंस देते, तो इधर नहीं करेंगे। सो इधर इट इज डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम आई विच एवर इज अर्लियर। Now remaining all things are going to be the same. Now let's just see if I sum up over here. See here, I have compared it like this: TOS under section 12 for goods and TOS under section 13 for services. FCM के लिए I issued within time, then I or P date whichever is earlier, payment recorded or payment credited in the bank. If I is not issued within date, date of provision of service or P date whichever is earlier. Ma'am, RCM think from the viewpoint of recipient. Associated enterprise P date or date of receipt of service whichever is earlier. Other cases में P or 61st day from I whichever is earlier. Ma'am, here P date is date when the payment is recorded or debited from the banks, or debited from the banks whichever is earlier. Now vouchers, residual case and additional consideration is same like goods, same like goods, correct? So now if you get a question on TOS, will you be able to solve it? Again, if you make this kind of a table and one day before the exam you have this table, it's given to you already in the notes. हमने ब्रेन मैपिंग बुक में बनाया है ये, हाँ, तो आपने अगर ये टेबल बनाया है तो you can revise this table in exactly 15 minutes and go. So you have to have this, you have to write down 15 minutes for TOS, half an hour for RCM, 20 to 25 minutes for composition. हाँ, so like this you will have to decide. And I'll tell you, tax paper को जाने के पहले finish GST, पहले कैपिटल गेन सैलरी से स्टार्ट किया तो काट डालूंगी। अरे तुमको इतना टेंशन आएगा, वो करते 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 तुम बोलोगे खत्म ही नहीं हो रहा, अभी पूरा जीएसटी बचा है, पूरा एक्ट। हु हैज आस्क्ड यू टू स्टार्ट विद दैट? फर्स्ट फिनिश जीएसटी, देन इन फ्यू आवर्स कांट यू फिनिश क्लबिंग, सेट ऑफ, रेसिडुअल, एचपी, आईओएस, कांट यू फिनिश इट इन फ्यू आवर्स? लास्ट में आराम से बैठ के सीजी करो, कैपिटल गेन्स करो, सैलरी करो। उसके लास्ट जिस दिन पेपर है, जिस दिन पेपर है, पेपर के सुबह उस दिन यू मस्ट रीड AMT 115 बैक, एंड यू हैव टू रीड ऑल दोस टैक्स रिलेटेड की LTCG का क्या टैक्स रेट है, इसका क्या है ये, एंड आई टेल यू अगेन,
2 थिंग्स इन इनकम टैक्स विच अगेन यू कांट लीव, स्टडी लीव में कर दिया तो नहीं चलता है, वो होता है TDS का चार्ट एंड डिडक्शंस। डिडक्शंस एंड TDS आपको एग्जाम के एक दिन पहले करना पड़ेगा, जैसे यहाँ RCM करना पड़ेगा। इफ यू प्लान प्रॉपरली थिंग्स आर डूएबल एंड मैनेजेबल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड सो आई विल स्टॉप द क्लास हियर। Okay. Stop. Okay. Thank you to all the. It's already uploaded on. एक minute. Can I just have a little conversation with my YouTube students? 2 minutes. Sit down. The PDF file is already there as a link to this lecture. I will be uploading 1 minute. मैंने आपको कौन सा लेक्चर बोला, मैं अपलोड कर दूंगी GST का। वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जाम्शन तो मैं लूंगी, वो अपलोड नहीं करूंगी। I will be uploading वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। हाँ, इंट्रोडक्शन तो उसके साथ ही है। सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई आई विल अपलोड। एग्जाम्शन में चेक करती हूँ, वो भी है, अगर वो अमेंडमेंट के साथ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं एक बार ले लूंगी। बेटा 1 मिनट बैठ जाना, यूट्यूब लेक्चर इज ऑन। हाँ, कैमरा इज ऑन। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Study and have confidence on yourself. Is that okay? That's very important. Don't doubt yourself. Okay? Yes. Bye. All the best. Thank you for being such great audience in 2Ds, whatever these 2-3 days. Thank you. बस. अरे? No. दिवाली अक्टूबर में है। या थैंक यू। यस, माय प्लेजर। नाही घेणार आहे मी, आता काय घ्यायचंय, अपलोड करणार आहे। हाँ, इसमें आप जो ब्रेक देते हो ना बीच में 10-15 मिनट के लिए, कब देते हो, कौन सा टाइम पे देते हो? कहाँ पे? नया जो बैच है जो आप जो बीच में ब्रेक देते हो ना, अलग अलग टाइम पे देती हूँ। ऐसे फिक्स नहीं है? हाँ, फिक्स नहीं है।